Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 7 New Oxford Modern English. Open the page number 51, the naming of cats. Today we are going to solve one exercise of this poem. On the next page, page number 53, working with words. C, learning about language. All of these questions are solved. Next section is listening and speaking. In the end of the exercise, question composition. All the questions up to composition have been solved in this video, so make sure to watch the video till the end. Let's move on to the first question. Answer the following question. In questions के आंसर देने हैं. Why does the poet say that the reader may think he is crazy? पोइट ने ये क्यों कहा कि that the reader may think he is crazy, कि पढ़ने वाला यानी रीडर जो है वो ये सोचेगा कि he is crazy, कि वो क्रेजी है, पागल है. Because he says that each cat must have 3 different names which may sound unusual or silly to the reader. क्योंकि वो कहता है कि हर बिल्ली के 3 मुख्तलिफ नाम होने चाहिए जो गैर मामूली या मजाक जैसे लग सकते हैं. Next question is, what is the first type of name that a cat should have? An everyday name used by the family such as Peter, James or Bill Bailey. Next question is, what is the second? बाकी question book से मुकम्मल करें, आंसर लिखें. A fancier or more dignified name often taken from history or mythology like Plato or Demeter. एक खूबसूरत और संजीदा नाम यानी बावकार नाम जो बिल्ली को ख़ास और मुअज़्ज़ज़ ज़ाहिर करें, आमतौर पर मशहूर तारीख़ी यानी हिस्ट्री और अफसानों के किरदारों के नामों पर रखे जाते हैं, जैसे कि प्लेटो, डिमीटर, इस किस्म के नाम कैट्स के रखे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फीमेल्स नेम और द फर्स्ट टाइप डज द पोएट सजेस्ट? इसके आंसर में आपने लिखना है, द पोएट सजेस्ट 1 फीमेल नेम Electra in the fancier name list. For the simple everyday name, he only lists male names. E question है, which fancier names does the poet suggest? The poet suggests names such as Plato, Admetus, Electra, and Demeter. In what way will a cat be able to behave if he is given a name that is particular? With a special and dignified name, a cat can hold up his tail proudly, spread his whiskers, and show his pride. Dignified का मतलब है पुरवकार. वो अपनी टेल प्राउडली यानी फ़ख्र से बुलंद कर सकता है. स्प्रेड का मतलब है फैलाना. जानवरों के जो चेहरे पर जो मौजूद बारीक लंबे बाल होते हैं उनको विस्कर बोलते हैं. तो वो अपने बाल जो हैं वो स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं. एंड शो हिज प्राइड, अपना फ़ख्र ज़ाहिर करने के लिए वो इस किस्म की हरकतें कर देते हैं. What is the third type of name that a cat must have? How the third type is unique, secret name, but only the cat knows. It is different because it is not an everyday name. It is deeply personal and never shared. H question, what a cat is in profound meditation. What is it thinking about? It is thinking about its own secret, ineffable and unique name. Ineffable का मतलब है नाकाबिले बयान. More challenging questions में, why do you think the particular names suggested for a cat may never belong to more than one cat? Can you suggest other such names? इसके आंसर में आप लिखें, because these names are meant to be unique and special for each individual cat. Example, fluffy paws, star whisker, shadow strips, golden eye, moonclaw. Next J question है, what do you think cats think about when they are not asleep? आंसर में लिखें, according to the poem के मुताबिक they are often lost in deep thought, probably about their mysterious secret name and their dignity. नज़म के मुताबिक वो अक्सर गहरी सोच में खोए रहते हैं, शायद अपने पुरस्रार खुफिया नाम और अपने वकार यानी इज़्ज़त एहतराम के बारे में सोचते हुए. यानी नज़म के मुताबिक बिल्लियाँ अक्सर गहरी सोच में डूबी होती. मुमकिन है कि वो अपने राज़दाराना नाम और अपने बावकार शख्सियत के बारे में गौर कर रही हो. ये पॉइंट के मुताबिक इसका आंसर है. नेक्स्ट के क्वेश्चन है, वर्क विथ अ क्लासमेट एंड थिंक. क्वेश्चन बुक से मुकम्मल करें, आंसर में लिखें, एवरीडे नेम टॉम, जैक, लिली, सैम, बेला. फैंसी नेम में है क्लियोपेट्रा, अपोलो, अथीना, हरक्यूलिस, डियाना. और यूनिक्स नेम है मून विस्पर्स, स्टार क्लॉ, एम्बर नाइट, सिल्वर पेल्ट,
whisker, wind. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हमेशा एक सेंटेंस दिया होता है, इसी सेंटेंस के अबाउट इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मैंने को सॉल्व किया हुआ है, आपके साथ शेयर करूंगी। ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम पीटर, ऑगस्टस, अलोंजा, जेम्स, विक्टर, जोनाथन, जॉर्ज, बिल बेली. When are these names used? These names are used daily by the cat's family to call it. Are there any other names by which a cat might be called? Yes, the cat may have fancier names or a secret name. These are different because they are more dignified or mysterious than simple everyday names. Next sentence है but above and beyond there's still one name left over. First question है इसका above and beyond what? के आंसर में आपने लिखना है above and beyond the everyday names and the fancy names. Second question है what is the name left over? The secret unique name that only the cat knows. How does a cat show it is? Question book से मुकम्मल करें. The cat goes into profound meditation, sits quietly and appears lost in thought. Section B working with words, लफ्ज़ों के साथ काम करना. Similar words हैं. What is the difference between the word given in each group below? यहाँ पे कुछ words given हैं. इन वर्ड्स के आपने ग्रुप्स बना लेने हैं और बताना है कि कौन किस ग्रुप का वर्ड है. हार्ड का लिखें नॉट इजी, डिफिकल्ट का है रिक्वायर्ड एफर्ट, अनमेनेजेबल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, डिमांडिंग नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट अटेंशन. नेक्स्ट वर्ड है बी हॉबी. हॉबी पर्सनल इंटरेस्ट, गेम प्लेड फॉर फन और कंपटीशन. पास टाइम लेजर एंजॉयमेंट, एक्टिविटी एनी एक्शन और टास्क. Peculiar की उर्दू में मीनिंग है अजीब, odd और strange, unusual, not common, specific, exact, particular, characteristic, typical, feature. Next word है occupied, busy, engaged, activity involved, committed, dedicated, employed, working in a job, love, deep affection, adore, strong admiration. Admiration की उर्दू मीनिंग है तारीफ, cherish, care deeply. Cherish का उर्दू मीनिंग है पालना. Yearn, long for something. Next grammar के about question है similes. When we compare two things by using the word likes or as, it is known as a simile. A simile is a form of comparison. यानी कि a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing. सिमिलीज कहाँ यूज़ होता है? द यूज़ ऑफ सिमिलीज एज अ मेथड ऑफ कंपैरिजन. जहाँ पे कंपैरिजन होता है वहाँ पर सिमिलीज का यूज़ होता है और किस वर्ड के ऐड करने से? लाइक लगा के या फिर एज लगा के. इसी के अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द कलरफुल सिमिलीज ऑफ योर ऑन. द साउंड ऑफ बर्ड्स फ्रॉम द ट्रीज इन द वैली वॉज एज क्लियर एज अ बेल. सिमिलीज का इस्तेमाल करके यहाँ पे पुटिंग करनी है, तो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ आ बेल. The man arrested by the policeman was as ugly as a toad. As mouse भी लिख सकते हैं, मैंने toad लिखा हुआ है. The telegraph wires buzzed like angry bees. Samir kicked the ball as straight as, line भी लिख सकते हैं, मैंने arrow लिखा हुआ है. A big sheep streamed into the harbor. Harbor as smoothly as silk, silk, silk. The wind howled through the trees like wolf. The startling news spread through the town like wildfire. During the curfew, the streets were as quiet as graveyard. Graveyard बोलते हैं कब्रिस्तान को. नेक्स्ट सेशन सी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना. सिमिलीज एंड मेटाफोर्स. काफ़ी तफसील से पैराग्राफ दिया गया है. एक शॉर्ट सा रिव्यू मैं आपको दे दूं कि सिमिलीज किसे कहते हैं और मेटाफोर किसे कहते हैं, क्योंकि इसी के अबाउट आगे क्वेश्चंस गिवन हैं इनको जिसको हम सॉल्व करेंगे. सिमिलीज किसे कहते हैं? अ सिमिलीज इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. दो मुख्तलिफ चीज़ें जिसका आपस में कंपैरिजन किया जाए उसको सिमिलीज कहते हैं. कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? लाइक और एज का इस्तेमाल करके दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है, यानी इट्स शो सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स. मैं इसकी कुछ एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे कि शी इज़ एज ब्रेव एज लॉयन, वो शेर की तरह बहादुर है, यानी एज का वर्ड यूज़ हुआ है. तो एज ब्रेव एज लॉयन ये क्या है? ये सिमिलीज है.
अब समझते हैं मेटाफॉर को। अ मेटाफॉर आल्सो कंपेयर्स टू थिंग्स, ये भी दो चीज़ों को कंपेयर करता है, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। लेकिन इसमें लाइक और एज का वर्ड यूज नहीं होता, जैसे कि सिमिलीज में यूज हुआ है। इट सेज वन थिंग इज another. It says one thing is another thing to create a strong image or meaning. यानी एक चीज दूसरी चीज हकीकत में नहीं, बल्कि मतलब या असर के तौर पर, जैसे वो चीज हकीकत में नहीं होती। जब मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि शी इज अ लॉयन इन अ बैटलफील्ड, या टाइम इज अ थीफ, वक्त चोर है। अब चोर तो वक्त नहीं हो सकता, लेकिन इसको मेटाफोर में यूज किया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, यानी वक्त तेजी से गुजर रहा है। एक और आसान सी एग्जाम्पल दे दो। हिज हार्ट इज स्ट्रॉन्ग, उसका हार्ट पत्थर की तरह। अब किसी का हार्ट तो पत्थर की तरह नहीं हो सकता, लेकिन जो एग्जाम्पल दी गई है स्टोन की, तो इसको हम कहेंगे मेटाफोर। अब आपको सिमिलीज और मेटाफोर दोनों में अच्छे से समझ आ गई होगी, ये समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी के अबाउट यहाँ क्वेश्चन गिवन है। यूज द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ जो वर्ड्स गिवन है इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करना है, बट कैसे यूज करना है? राइट टू सेंटेंसेस और फॉर ईच वर्ड। हर वर्ड के दो सेंटेंसेस बनाने हैं, एक को लिटरली और दूसरी को मेटाफोरिकली यूज करना है। अब लिटरली किसे कहते हैं? लिटरली का मतलब है लफ्जी तौर पर, यानी हकीकत में। और मेटाफोरिकली किसे कहते हैं? और मेटाफोरिकली अलामती तौर पर। ये वाले वर्ड्स हम यूज करेंगे जो कि बुक में गिवन है, वो है रूट। रूट का मैंने एक लिटरल सेंटेंस बनाया हुआ है और एक मेटाफोरिकल बनाया हुआ है। द रूट ऑफ द ट्री वेंट डीप इनटू द सॉइल। ऑनेस्टी इज द रूट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। नेक्स्ट वर्ड है पेरेंट। Ali's parent attended the school meeting. Necessary is the parent of invention. Next word है arms. The baby slept in her mother's arm. Metaphorical sentence में लिखें, the country took up arms defend itself. Bed. I sleep in my bed in every night. Metaphorical इसका बनाए, the river has a rocky bed. Cage. वैसे तो केज के लफ्ज़ वाइनी होते हैं पिंजरा। द पैरेट वॉज केप्ट इन अ केज। मेटाफोरिकल सेंटेंसेस में लिखें, फियर कैन बिकम अ केज फॉर द माइंड। स्टार, वी सा अ ब्राइट स्टार इन द स्काई, और ही इज द स्टार ऑफ द क्रिकेट टीम। नेक्स्ट और लास्ट वन है डॉक्टर। द डॉक्टर गिव मी मेडिसिन। और मेटाफोरिक सेंटेंस बनाएं, लाफ्टर इज द बेस्ट डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव मेटाफोरिकल यूजेस फॉर द वर्ड्स इन इटैलिक। इटैलिक में जो वर्ड्स लिखे गए हैं इसके भी मैंने नोट बनाए हुए हैं, आपसे शेयर करूंगी। अ बॉडी ऑफ मैन, आपने इसका आंसर लिखना है अ ग्रुप ऑफ पीपल। अ बॉडी ऑफ मैन से क्या मुराद है? अ ग्रुप ऑफ पीपल। अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अ मेंस बैक, इससे क्या मुराद है? अ सॉफ्ट पिलो, समथिंग दैट ऑफर्स कंफर्ट या फिर सपोर्ट। द ब्रांच ऑफ अ ट्री, अ ड्रीम हार्ट। अ पर्सन्स विशेस टू बिकम स्टक इन अ डल। क्वेश्चन नंबर 3, बिलो आर सम मेटाफोर्स दैट वी ऑफन यूज। यहाँ पे कुछ मेटाफोर्स गिवन है जिसका अक्सर यूज किया जाता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच, हर एक के आपने मीनिंग्स भी बताने हैं। यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और इन्हीं वर्ड्स को आपने सेंटेंसेस में भी यूज करना है। मेटाफोरिक वर्ड्स हैं जो कि है गेटिंग इनटू अ रट, टू बिकम स्टक इन अ डल, रूटीन वे ऑफ लिविंग और वर्किंग। इसकी मैं मीनिंग्स बता रही हूँ आपको। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स की मीनिंग्स हैं डूइंग थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, रिवर्सिंग द प्रॉपर प्रोसीजर। नेक्स्ट थर्ड वर्ड है टू स्मेल अ रैट। तो इसके आप मीनिंग्स लिखें, टू सस्पेक्ट that something is wrong or that someone has been dishonest. Fourth word यानी D word है on its last leg. इसकी मीनिंग है about to fail. collapse का मतलब है गिरना, और wear out completely. Next last word है to steer clear of something. आंसर लिखें इसका, यानी मीनिंग्स लिखें, to avoid someone or something because they are difficult or dangerous. इन्हीं वर्ड्स के सेंटेंसेस भी बनाने हैं, मीनिंग मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। अब हम सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं।
My work life is so repetitive, I am getting into a rut. Putting the cart before the horse, trying to decorate the house before buying the furniture is putting the cart before the horse. To smell a rat? When the gate was locked, I started to smell a rat. On its last leg, that old painter is definitely on its last legs. You should steer clear of that road during rush hours. ये थे इसके sentences. अब next question की तरफ चलते हैं. में question number 4. Underline direct object and circle indirect object. Direct और indirect के बारे में ऊपर तफसील से समझाया गया है. Sentence है she sold her car. Sold action word है. Her car is direct object क्योंकि it receives the action. Her car क्या है? Direct object है क्योंकि ये एक्शन को रिसीव कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस है द फादर गिव हिज सन अ गिफ्ट. इसमें ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. एक्शन वर्ब है इसमें गिव, ये एक्शन वर्ड है और आफ्टर द वर्ब क्या पूछा गया है, यानी द फादर गिव वर्ड क्या दिया गया है, अ गिफ्ट. अ गिफ्ट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसमें इनडायरेक्ट क्या है, हिज सन. क्यों इनडायरेक्ट है? क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द रिसीव ऑफ द एक्शन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आ गिफ्ट. जमीला गिफ्ट सम सीरियल टू हर डॉटर. एक्शन वर्ड है गिफ्ट और किस बारे में पूछा गया है, आफ्टर वर्ब में सम सीरियल के बारे में पूछा गया है. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है द थिंग गिवन. कौन सी चीज है? सम सीरियल. तो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. किसको दिए गए हैं? आस्क्ड टू whom आफ्टर द वर्ब. तो जमीला गिव्स सम सीरियल टू whom? टू हर डॉटर. तो टू हर डॉटर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि टू रिसीव कौन कर रहा है? टू हर डॉटर. तो इस तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हर डॉटर और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सम सीरियल. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, इसके बारे में तफसील से बाकी वीडियोस में भी मैं समझा चुकी हूँ. इस पैराग्राफ को रीड कर लें, आपको समझ आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस whether the verb is transitive or intransitive. नोट whether the object is direct or indirect. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी बताना है और साथ में ये भी बताना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. First sentence is the old man cried often. In this sentence, subject is the old man. Old man जो काम कर रहा है यानी सब्जेक्ट है the old man. और कौन सा काम हो रहा है यानी वर्ब कौन सा है? cried. ये क्या है? cried. ये वर्ब है. अब टाइप ऑफ वर्ब क्या है? ये है intransitive because the action cried has no object. Often is the word often is an adverb describing the verb. So subject is the old man, cried is verb and verb type है intransitive. Next sentence, the heater warmed the room. Subject heater. वर्ब क्या है? जो काम हो रहा है वो है warmed. वर्ब टाइप है ट्रांजिटिव. ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट द रूम. नेक्स्ट सेंटेंस है द वुमेन स्लेप्ट. सब्जेक्ट द वुमेन, वर्ब स्लेप्ट और वर्ब टाइप है इंट्रांजिटिव बिकॉज द एक्शन स्लेप्ट has no object. Because of this, the verb type is intransitive. Next sentence, we laughed. We is the subject, verb is laughed. The verb type is intransitive because the action verb, the action laughed has no object. So, the type of verb is intransitive. Next sentence, he gave the comics to me. Subject is he,
Verb is give and verb type is transitive. Verb type is transitive. Object direct. The comic. So object is direct. Next sentence. The sun shone brightly. Subject the sun. Verb is shown. Verb type is intransitive. The action shown has no object. Brightly is an adverb describing the verb. So the verb type is transitive. They left the classroom. Subject is they. Verb is left. Verb type is transitive. Object direct the classroom. This answer left. What? We are driving the car slowly. Subject is we. Verb is are driving. And verb type transitive. The car is a direct object. लिसनिंग एंड स्पीकिंग सुनना और बोलना अपोलोजाइज का मतलब है माफ़ी मांगना किस सिचुएशन में कौन सी माफ़ी मांगनी चाहिए कैसी माफ़ी मांगनी चाहिए यहाँ पे समझाया गया है और फिर इसी के अबाउट क्वेश्चन है वर्क विद अ क्लासमेट एंड प्रैक्टिस द अबव एक्सप्रेशन और फिर नेक्स्ट है यूज वन ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन above for each of the following situation. Also think about what the responses might be. You may role play all these situation in class. यहाँ पे sentences given है इसका मैं ज़बानी ही आंसर दूंगी. You drop your mother's cup on the floor and it breaks. So apology, when you say in apology mood, apology में आपने बोलना है oh no mom I am sorry accidentally dropped your cup please forgive me. So response क्या होगा? That's quite alright. It was an accident, don't worry about it. And next sentence, you bumped into somebody as you passed in a hurry. So you apologize like this. Excuse me, I'm sorry I didn't see you there. And your response, didn't mention it. आपने इसका response कैसे देना है? Don't mention it. Next sentence is, you hear that a friend has lost her pet dog. Apology but in a sympathy mood. As a sympathy आप apologize करोगे. I am so sorry to hear about your dog. That's awful. And your response is, if anyone apology like this, so your response is, thanks for your sympathy. I appreciate it. Next sentence है, you sneeze loudly and do not get your handkerchief out in time. तो फिर आपने कैसे करना है जब आप स्नीज़ कर रही हैं और आपने लाउडली स्नीज़ किया और अपना रुमाल टाइम पे ना निकाल सके, अब आपने अपोलोजाइज़ कैसे करना है? कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं? तो आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट एंड योर रिस्पॉन्स इज़ दैट्स क्वाइट ऑलराइट। और अगर आपसे कोई अपोलोजाइज़ कर रहा है, अब सो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए दैट्स क्वाइट ऑलराइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू स्पिल योर ड्रिंक सोप ऑन समबडीज़ शर्ट। सो अपोलोजी कैसे करोगे? आई एम सो सॉरी आई स्पिल्ट इट माई ड्रिंक ऑन यू लेट मी हेल्प यू क्लीन इट अप। अगर आपने रिस्पॉन्स देना है तो फिर आप रिस्पॉन्स दोगे इट्स ओके डोंट मेंशन इट इट विल ड्राई। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, यू टेक अ फ्रेंड टू द सिनेमा बट इट इज क्लोज्ड। आई एम सो सॉरी यू अपोलोजाइज लाइक दिस। आई एम सो सॉरी आई अपोलोजाइज फॉर दिस आई शुड हैव चेक्ड द ओपनिंग टाइम। और अगर आपसे कोई अपोलोजाइज कर रहा है फिर आपने रिस्पॉन्स देना है देयर इज नो नीड टू बी सॉरी वी कैन गो फॉर अ वॉक इंस्टेड। एंड लास्ट है, यू रियलाइज you have forgotten to bring you completed homework when the teacher asked to see it. So आप apologize कैसे करोगे? I do beg your pardon teacher but I have forgotten to bring my homework today. और आपका response होना चाहिए I see. Please make sure you bring it tomorrow. You have just eaten last biscuit which your friend wanted. I'm so sorry I didn't realize that was the last biscuit. I know you wanted it. और response कैसे देना है? Don't mention it. I will have something else. Next sentence, you enter a room without knocking and disturb somebody inside. Apologize. Excuse me, I apologize for not knocking. I didn't know anyone was in here. And your response is, that's quite alright, but please knock next time. Warn भी कर सकते हो कि next time आपने lock करना है. So next sentence is the last sentence. You mistake a person for someone else. Apologize कैसे करना है? Oh, I do beg
your burden, mistook you for someone I know. और response कैसे देना है? There is no need to be sorry. It's an easy mistake. Next E session is composition. Composition is the last question of this exercise. इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियोस आपके काम आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। कंपोजिशन में क्वेश्चन है स्टडीइंग अ पिक्चर, टेक फर्स्ट अबाउट दैट यू कैन सी, मेक अ फ्यू नोट्स बनाने हैं इस पिक्चर को देख के। देन थिंक अबाउट व्हाट द पीपल आर डूइंग, और फिर सोचे कि लोग क्या कर रहे हैं। व्हाई आर दे डूइंग दिस, और ये क्यों कर रहे हैं। योर आइडियाज, इट a list or mind map. Using your note above the picture, write a short story. The picture should be a suitable illustration to go with your story. The picture will illustrate the beginning of your story or the end. Draft your story first. Read your draft carefully to check your spelling, punctuation, and grammar. Make correction on your draft. Check that your story makes sense and that you have used transitional devices well. When you have finished editing your draft, write a neat final draft. सीक्वेंस इवेंट यहाँ गिवन है, इसी के अबाउट आपने नोट्स बनाने हैं। मैंने इसके 2 आंसर लिखे हुए हैं, आपसे शेयर करूंगी। नोट्स में व्हाट आई सी में आपने लिखना है आई सा लार्ज बाउल ऑफ नूडल्स, मैनी हैंड्स, चॉपस्टिक, पीपल गैदरिंग, द मूड सीम्स फ्रेंडली एंड कैजुअल। नोट्स आपने लिखना है व्हाट आई सी अ लार्ज बाउल ऑफ नूडल्स, मैनी हैंड, चॉपस्टिक्स, पीपल गैदर्ड अराउंड अ टेबल। व्हाट इज हैपनिंग, इसके आंसर में लिखें अ ग्रुप ऑफ पीपल आर शेयरिंग अ मील फ्रॉम वन बिग बाउल। वाई, क्वेश्चन में क्यों भी कहा गया है कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके आंसर में आपने लिखना है दे आर लाइकली फ्रेंड्स और फैमिली एंजॉयिंग अ मील together. It looks like a happy communal gathering. The mood seems friendly and casual. Short story. The delicious smell of garlic and soy sauce filled the small apartment. It was Friday night, and after a long week, my friends and I had all gathered at Lay's apartment for our weekly tradition, noodles night. Lee placed steaming bowl of chow mein in the center of the table. Instantly, a flurry of hand and chopsticks dived in. Hey, save some for me, laughed Sarah. Ink Mark's elbow. We were all huddled close, shelter bumping, as we skillfully pulled tangled noodles from the communal bowl. It wasn't just about the food, it was about this moment, sharing stories, laughing until our stomachs hurt, and feeling a sense of belonging. As I looked at my friends' faces, all focused on the simple pleasure of the shared meal, I knew this was a memory I would treasure. कंपोजिशन तक के तमाम तर क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पोएम की पैराफ्रेजिंग आपसे शेयर की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।